Welcome to this very special episode of Jito Talks. Today we are extremely lucky to have a person who has more than 12 years of experience of handling Indian clients going to Singapore. So who can be a better person than that to tell us how to visit to Singapore and all the nuances of traveling to Singapore. So please welcome with me Mr. Nawaz Hussain. Thank you, sir. Thank you for coming. Thank you. Thank you for honoring me, having me. So tell me, how's things? All good? Yes, sir. It's extremely good. I thank you for making your time for this podcast on a short visit to Delhi. Yeah, I'd love to do it for Jito Talks. Great. All right, Nawaz sir. So I will start from the very basic. So for our viewers, we want to keep this podcast relevant, crisp and to the point. So if you are planning to travel to Singapore, या आप सिंगापुर के बारे में कुछ भी सोच रहे हैं, तो this is a video that you must see. So एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं नवाज भाई. Yes, करते हैं. कि दुनिया में इतनी destinations हैं, lot of destinations are coming up also. People are promoting new destinations. So why should people go to Singapore? It's a very good question. Why Singapore? What's unique about Singapore? Absolutely. Singapore itself is a unique country, first thing. So it has a lot of things where we can achieve as a solo traveler or a family traveler, or it can be a honeymoon couple. So all in one at one place is what Singapore is all about. So if you talk about some unique point, say Singapore is modern, cultural, functional. So you got food options. So everything in one place. And also Singapore is a place where you have lot many things to see. Say for example, Marina Bay Sands, Gardens by the Bay. And if you talk about Changi Airport is been world's topmost airport consistently over the years. So likewise, if you want to visit about places, you got Chinatown, Klumping, and Little India. Little India, as you all know, Little India is same Indian style of place where you can find all sort of Indian things over there. India outside of India. Yeah, India is outside of India. Exactly, correct. ऐसा ही same India जैसे ही लिखता है आपको जब Little India जाते हैं, so you will feel like home again. So that is one thing good about Little India in Singapore. Or secondly, unique thing is what about transport. You can see transports are good. Okay. इतना स्मूथ दिखता है आपको जैसा कोई ओवरसीज एक फॉरेन कंट्री पे नहीं हो. सो इट्स ट्रांसपोर्ट इट रन्स ऑटोमेटिकली. ऐसा कोई सुपरवाइज नहीं चाहिए सिंगापुर के लिए. सो वो एक चीज़ आइड से. और उसके बाद ऐसा है आपको फील सेफ महसूस होगा. सो ऐसा नहीं है आप फॉरेन पे हो, लाइक अनजान शहर पे हो, क्या चल रहा है, ऐसा नहीं है. मतलब सिंगल गर्ल्स भी जाएंगे, कोई लड़की जाएगी, ग्रुप्स जा रहे हैं. इट इज टोटली सेफ. इट रन्स 24 आवर्स राउंड द क्लॉक. ऐसा नहीं है आपको मॉर्निंग डे में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा. जैसा मॉर्निंग में आपको सेफ्टी मिलेगा, यू विल फील कंफर्टेबल. सेम इन द नाइट ऑल्सो, वेदर इट इज़ 12 AM, 3 AM, 4 AM. सिंगापुर इज वाइडली night place to have fun around. So that is one thing unique about Singapore, I'd say. Great. मैंने तो सिंगापुर के बारे में something that I know is that it's one of the rare places का एयरपोर्ट ही इतना खूबसूरत है कि वही एक स्पॉट विजिट है. हाँ, एयरपोर्ट ही एक फुल डे अट्रैक्शन है. अगर मैं कहूँगा आप सिंगापुर आइटनरी बना रहे हो तो सिंगापुर एयरपोर्ट के लिए आपको एक दिन चाहिए. सो ज्वेल जो फील मिलेगा, वो वर्टेक्स जो पानी ऊपर से गिरता आपने देखा होगा, सो उसके लिए और रन अराउंड द एंटायर एयरपोर्ट के लिए आपको एक दिन चाहिए. और लिटिल इंडिया पे आप एक्सप्लोर करना चाहते हो जो कोई भी चीज़ेस, लिटिल इंडिया के लिए एक दिन चाहिए. कल्चरल टेम्पल्स है, इतने सारे टेम्पल्स लिटिल इंडिया पे है. सो उसके लिए आपको टाइम ज़्यादा. एक सिंगापुर ऐसे शहर पे यू विल नॉट एक्सपीरियंस और यू विल नॉट बी ऐसा एक पर्सपेक्टिव नहीं रहेगा. इतना हेरिटेज और कल्चरल देख सकते हैं. सही है. और एक साउथ एशिया का वन ऑफ द बेस्ट थीम पार्क्स भी है, यूनिवर्सल स्टूडियो. यस, जो पूरे इंडिया पे ऐसा कोई थीम पार्क ऐसा इतना फेमस, इतना बड़ा यूनिक थीम पार्क नहीं है. करेक्ट. अट्रैक्शंस के बारे में बात करो तो आपको इतने ज़्यादा है. सो मैंने सिर्फ व्हाट इज़ यूनिक अबाउट सिंगापुर पे शुरुआत कर रहा हूँ. ओके नवाज भाई, तो we have already covered the main spots of Singapore and when people can visit, and we have clearly see that Singapore is something that people on every age group can visit. Yes. At any time of the year. Yes. Correct? So that is done. So See. as a person who will be working with Singapore for 12 plus years, I mean hosting so many Indian guests, tell us something that normal people will not know, that is normally not evident in Google, something special about Singapore. Yes, correct. There are things, I mean there are places to see. ऐसा नहीं है जो रूटीन के अलग से जो चीज़ है. करेक्ट. लाइक हम लोग हिडन जेम्स बोलते हैं. सो रेगुलर इंडियंस जाना नहीं चाहते, बट ऑफ बीट ट्रैवलर्स प्रेफर करते हैं, सो दैट we'll see the other side of Singapore. Correct. So इसमें there are few things, few places I personally feel
few places. So that in that among one is Hopper Villa. Hopper Villa क्या है ना, थोड़ा weird है but beautiful है. So Hopper Villa is fully about Chinese mythology. So it is full on Chinese, based on Chinese है. Okay. Secondly comes at Lazarus Island. So it's a perfect beach getaway. Okay. So it's just a ferry ride away. So you will have to up ferry लेके जाना पड़ेगा. It's a cool place. Cool evenings पे, it looks amazing. एंड थर्ड आपको आएगा कैनोपी ज्वेल पार्क के अंदर है ना, जो एयरपोर्ट के अंदर। एयरपोर्ट के अंदर है. एयरपोर्ट के अंदर सो कूल है, आपको ज़्यादा थिंग्स है, अट्रैक्शन है बच्चों के लिए. सो मेनी थिंग्स विच नोबडी नोज. एक्चुअली इट्स हिडन जेम ऑल्सो. एंड सेकंड अदर थिंग इज देयर इज समथिंग कॉल्ड गिलमैन बैरक्स है. सो इट इज नथिंग बट इट हैज़ it's artsy zone, मतलब fully artsy zone रहेगा. There's lot many cool museums and cafe around the places. So people who are interested in art and culture, they can Yes. So that for them, it's a perfect place to visit, I'd say. और उसके बाद आता है Thiang Bahru. Thiang Bahru is nothing but where old meets new kind thing. So उस पे क्या है ना, there's a neighborhood with bakeries, indie stories and chill vibes. So वो different sort of रहता है area है. Yes, different sorts of area है. और उसके बाद आती है Southern Ridges and Henderson Waves. It is nothing but a walking trail experience है, with amazing views throughout the walk. So it's a must place, must hidden gem, a good hidden gem in Singapore, I'd say. Great. उसके बाद the last one comes Bukit Brown Cemetery. Okay. It's a mix of history and nature. Okay. And it sounds odd, but it's a quite unique thing. So cemetery is something unique, is something different in Singapore. ऐसा नहीं है cemetery, you know what आपको cemetery क्या रहेगा, but ये वाला जो cemetery है, जो Bukit Cemetery है, it's fully unique. Okay. और peaceful area है, something where हाँ, ऐसा feel नहीं होगा आपको, एक cemetery के अंदर है. Okay. Nice. So that is good thing about Bukit Cemetery, I'd say. Oh, great. So even I didn't know that there were so many hidden gems in Singapore. इतने सारे spots हैं. Even I have not heard of it. So it's great to know about it. And आगे जाके we will also recommend our customers, Yes, right, करना जरूर. to enjoy Singapore fully, right? Immerse themselves in this cultural context of this city. Outside attractions Such the like yes, popular ones. Yes, correct. Correct. Okay. So one very very popular question about well people are traveling outside India is food. यार मेरे को घर का खाना मिलेगा क्योंकि I don't want local food. So what are the food options in Singapore? सिंगापुर, मैं कह सकता हूँ सिंगापुर इज अ हेवनली प्लेस फॉर फूड. Okay. सो आपका ऐसा क्यों बोल रहा, मतलब सिंगापुर इज अ फूड प्लेस. सो अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, सो सिंगापुर इज मेनली व्हाट आई पर्सनली फील इज सिंगापुर इज अ परफेक्ट प्लेस फॉर अ फूड. आई से फूड पैराडाइज, फूड हेवन, नेम एनीथिंग, सिंगापुर पे वो सूट करता है. सो हम लोग को क्या चाहिए, इंडियन फूड चाहिए. सो इंडियन फूड सिंगापुर पे आपको ऑथेंटिक मिल जाएगा, जैसा आप इंडिया पे खा रहे हो. Similar taste मिलेगा. सिमिलर टेस्ट में देर आर सो मेनी इंडियन रेस्टोरेंट्स इन एंड अराउंड लिटिल इंडिया पे ही बोल रहा हूँ. इंडियन रेस्टोरेंट्स आपको हर जगह में मिलेगा. आउटसाइड अगर अट्रैक्शन के बारे, यूनिवर्सल स्टूडियो के अंदर भी आपको इंडियन फूड ऑप्शन है. सेंटोसा के अंदर भी आपको इंडियन फूड ऑप्शन है. और नाइट सफारी के अंदर भी आपको इंडियन फूड ऑप्शन अवेलेबल है. सो सिंगापुर इज अ प्लेस वेयर एवरी सिंगल कॉर्नर पे आपको इंडियन फूड मिलेगा. सो लिटिल इंडिया पे आपको देयर आर हंड्रेड्स ऑफ रेस्टोरेंट्स है. एग्जैक्टली आप वेज हो, नॉन वेज हो, जो कोई भी हो, उसको सेम एज इंडिया टेस्ट पे आपको मिलेगा. उस पर कोई डाउट नहीं है. कोई डाउट नहीं. यस, जैन फूड भी मिलेगा. 100% जैन फूड मिलेगा. जैन फूड भी मिलेगा. ग्रेट. यस, मिलेगा. जैन फूड आपको हर रेस्टोरेंट में नहीं है, फ्यू वेज रेस्टोरेंट्स में आपको मिलेगा. से अगर आपको कोमले विलास है और राज रेस्टोरेंट है और आनंद भवन है, उधर आपको मिल जाएगा, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है. और ऊपर से ग्लोबल हम लोग के साइड से अगर आप प्री बुक कर रहे हो मील, ये पैकेज के अंदर आप ले रहे हो, तो तब हम लोग प्री बुक करते हैं. सो अगर ग्रुप्स हो, FAT हो, हर चीज़ के लिए हम लोग ग्लोबल प्री बुक करके देते हैं. और सिंगापुर में आपको ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है दैट यू कैन ऑल्सो ईट. ये हॉकर सेंटर्स है, हॉकर सेंटर्स भी आप लोकल फूड ट्राई कर सकते हैं. और जो ये चाइनीज़ ईटरीज है उधर आप ट्राई कर सकते हैं. किसी को अगर लोकल फूड का टेस्ट करना है कि सिंगापुरियन फ्लेवर्स क्या है, तो वहाँ पे जाके यस दे कैन ट्राई हॉकर सेंटर्स. लाइक लोकली हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, इंडियंस जाके इंडियन खाना खा के वापस आ जाते हैं. सो टू अवॉइड दैट ये लोग ये दो प्लेसेस ट्राई कर सकते हैं. वन इज हॉकर सेंटर ट्राई कर सकते हैं, और उसके बाद ये चाइनीज ईटरीज है. सो ये दोनों प्लेसेस पे आपको लोकल ऑथेंटिक मिल जाएगा, वेज और नॉन वेज, बट दोनों है. आपको प्रॉपर एशियन फूड मिलेगा. सो उसमें कोई डाउट नहीं है.
और उसके बाद आपको ये ईटरी जो कोई भी आपको प्लान, ऐसा कोई डाइट वगैरह है, कुछ कॉशियस है, कोई ऐसा सोचता है मेरे को इससे एलर्जी है उससे एलर्जी है, लाइक फॉरेन कंट्री पे एक्सप्लोर करने का, ऐसा कोई ज़रूरत डरना ज़रूरी नहीं है. इट इज़ ओके वेरी सेफ. Everything is available. एवरीथिंग इज अवेलेबल विच इज़ हाइजीन. तो बात ही नहीं है उधर, आपको तो कोई डाउट ही नहीं आना चाहिए. इट्स फुल्ली हाइजीन. सो सिंगापुर इज़ अ परफेक्ट फूड डेस्टिनेशन, आई स्ट्रांगली से. Yeah, honest. So great. So there is no problem in food also. Yes. Great. So there'll be that in your years of experience, right? Now we have talked about food also. So what things do you think the people should do, and what mistakes do they generally make when they go to Singapore? ओके, इंडियन विजिटर्स मिस्टेक्स एज इन तो होता ही रहता है. थोड़ा बहुत न्यू कंट्री पे हम लोग को पता नहीं चलता है क्या करना है क्या नहीं करना है. What things they should avoid while they go into Singapore? यस, सो हम लोग जब ट्रैवल करते हैं इंडियन मेंटालिटी को लेके ट्रैवल करते हैं, सो तब हम लोग को महसूस नहीं होता है हम लोग फॉरेन पे है, थोड़ा बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है, ज़रूरी है. सो वो उस चीज़ पे सिंगापुर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, यू नो. अभी यूजुअली अभी क्या करते हैं जो लोग च्युइंगम खा के लिटरिंग करते हैं, सो वो बहुत स्ट्रिक्ट है. सिंगापुर इज द क्लीनेस्ट कंट्री वेयर यू एवर सी इन द वर्ल्ड. सो मैंने भी देखा है, आप भी देखा होगा. इट्स ए क्लीन कंट्री. एंड सिंगापुर के ऊपर फाइन्स जो बनती है आपको, अगर कुछ ऐसा कुछ लिटरिंग पे पकड़ोगे तो फाइन्स आर मैसिव है. सो और उसके बाद है ना, सिंगापुर में कॉमन मिस्टेक अब क्या कहते हैं, लोग उनका फूड कैरी करके पब्लिक पे जो है खाते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे खाते हैं, ड्रिंकिंग ऑल्सो. सो इनसाइड प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो हम लोग लेते हैं ना व्हीकल के अंदर, इट्स ए नो थिंग. स्ट्रिक्टली सिंगापुर पे आपको जो टूर व्हीकल आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर खाना मना है. अच्छा, सो लोग रेस्टोरेंट पे जाके खा सकते हैं, रूम के अंदर जाके. यस क्या अभी ज़्यादा लोग क्या करते हैं ना, जो बेबीज रहा होता है कैरी करते हैं. सो दैट टाइम स्टिल यू नो ड्राइवर्स से नो टू फ्यू थिंग्स, बट as a traveler it's our responsibility also to maintain few things which is been in practice in Singapore. थोड़ा मेंटेन करना चाहिए. yes ज़रूरी है. और उसके बाद क्या करते हैं ना, लोग टिकट्स अट्रैक्शन टिकट्स नहीं बुक करते. ज़्यादा से लोग क्या करते हैं, चलो वील गो टू ऑन ग्राउंड एंड वील बुक. ऐसा नहीं होता. कभी पीक डेट्स रहता है, आपको मिस आउट. अभी एक्सप्रेस यूनिवर्सल स्टूडियो में एक्सप्रेस पास है, दैट हैज़ टू बी डन अ प्री परचेस. सो पीपल विल बी इन माइंडसेट दैट आई विल गो परचेस डायरेक्टली. नो, बिकॉज इट्स लिमिटेड अवेलेबिलिटी. सो उसको प्री परचेस करना होता है. सो डू टिकट्स में ऑल्सो. So it's always better to prepare yourself while before entering into Singapore. Right. It's a good thing that people should That's follow. a very common advice, and we give almost all our travelers say that the more you plan in advance, the better it is for you. Yes. We'll get cheaper and we'll get a confirmed availability as well. Yes. थोड़ा सिंगापुर ऐसा डेस्टिनेशन है, थोड़ा होमवर्क करना पड़ता है. देख ऐसा नहीं है. So even though you follow the itinerary, but होमवर्क करना पड़ता है. So थोड़ा बहुत what is night safari, what is Universal Studio, the basic idea, you know. हम लोग एक आउटसाइड कंट्री जा रहे हैं, थोड़ा बहुत होमवर्क बनता है. सो यू हैव टू नो व्हाट इज़ व्हाट. से टाइमिंग्स जो आइटनरी फॉलो करना पड़ता है. आप लोग आइटनरी वेल इन एडवांस दे देते, बट गेस्ट क्या करते हैं ना, टाइमिंग्स देखने भूल जाते हैं. सो लास्ट मिनट चेंजेस लेके आते हैं. दैट इज़ रियल चैलेंज फॉर अस लाइक DMCs. सो वो भी एक प्रॉब्लम है. और ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करो, फिर प्राइवेट दो तरीके के ट्रांसफर्स होते हैं, प्राइवेट बेसिस और शेयर ट्रांसफर्स होता है. सो शेयर ट्रांसफर में क्या होता है ना, लोग ऑन टाइम पे नहीं आते. सभी क्या होता है, वो लोग 5 मिनट, अभी SAC का वेटिंग टाइम है आपको मैक्सिमम 5 मिनट्स होता है. 5 मिनट्स ऑल्सो हायर साइड बोल रहा हूँ, वे हायर साइड बोल रहा हूँ. मल्टीपल पिकअप्स होता है. अगर आप लेट हो तो सामने से आगे वाला लेट हो रहा है. सो एंटायर चेन विल ब्रेक आउट. सो मैं क्या करता हूँ, कॉमन मिस्टेक्स पे ये मेजर वन है. सो व्हेन यू नो दैट यू आर इन शेयर ट्रांसपोर्ट, आपको टाइम पे आना चाहिए. एक 5 मिनट पहले लॉबी पे आके वेट करना पड़ता है. एडवांस पे आ जाओ, एडवांस नहीं लेना है. यस. सो वो एक बेटर चीज़ है टू सपोर्ट एस ऑल्सो, लाइक पर्सन लाइक एस ऑल्सो. लास्ट मिनट में अगर एक का डिले हुआ तो वी विल एवरीथिंग एवरीवन. आपको भी एक्सपीरियंस खराब होगा. आपको भी पिकअप करना है टाइम पे, आगे वाले को भी पिकअप करना है. सो टाइम पर अट्रैक्शन भी जाके पहुंचना है. सो दैट इज अ कॉमन थिंग आई वुड से, अपार्ट फ्रॉम जो लिस्ट आउट किया था. ये जो चीज़ इंडियन ट्रैवलर्स सेल्फ डेवलप करना पड़ता है while traveling to any foreign country, not just Singapore, any foreign country पे टाइमिंग और थोड़ा बहुत ये ना फ्लेक्सिबिलिटी कम रहता है. सो दैट पार्ट्स इंडियन शुड पे मोर अटेंशन. इट्स माय फील. Those are some very important point, Nawaz भाई, कि what mistakes do people do and they should really take care of these mistakes कि वो avoid करना चाहिए. अच्छा, वो आपने जो चीज़ें बोली वो होपफुली हमारे ट्रैवलर्स को समझ में आ रहा, वो अवॉइड करेंगे. और ये कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो नॉट ओनली फॉर सिंगापुर, हर डेस्टिनेशन के लिए उनको ये फॉलो करना ही चाहिए. लाइक वी आर वेरी बेसिक एटिकेट दैट पीपल शुड फॉलो. जो
हम लोग जो बात कर रहे थे वो उसके बारे में एक पॉइंट में भूल गया. सो जब लोकल्स आके सिंगापुर इंडियंस जो लोकल प्लेसेस विजिट करते हैं सिंगापुर के जो लोकल प्लेसेस लाइक यू नो टेम्पल और रिलीजियस प्लेसेस, तब उनका जो डेकोरम हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हम लोग डिलीवर नहीं कर पाते मैक्सिमम टाइम. वो भी करना ज़रूरी है, मेरा एक पर्सनल फील है. जो उन लोग के पास जा रहे हैं तब उन लोग का जो भी रिचुअल्स कल्चर है वो फॉलो करना बनता है हम लोग को इंडियंस के लिए. वो तो बेसिक ह्यूमन एटिकेट है ही. यस. Okay. So in that case, for question is that we promise to all our guests, right, that we'll deliver you the highest levels of service, highest quality of service. You will not face any issues. And based on that promise, वो trust करके हमें अपने hard earned money हमें provide करते हैं एडवांस पे कि ठीक है चलो मैं घूमने जाऊंगा, मेरा once upon a lifetime एक trip है. So how do you ensure on ground when the guest reaches on ground कि जो हमने promise किया है वो promise fulfill होगा? यस, सो गुड क्वेश्चन. अभी उसमें ना मल्टीपल एलिमेंट्स आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं ऑन अ डेली बेसिस टू मेंटेन सर्विस क्वालिटी. सो आपका सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते. सो टू रिटेन आवर वैल्यूड एजेंट्स हम लोग फ्यू चेक्स है उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस देते हैं. सो फ्यू थिंग्स ऐसा है कि ऑन अ डेली बेसिस हम लोग रेस्टोरेंट्स प्रॉपरली चूज करते हैं. ओके, दैट इज मेन थिंग. जो फूड दे रहे हैं दैट इज मेजर थिंग. उसके बाद होटल्स आता है. होटल्स जो हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड करके रखा हुआ है, मेकिंग श्योर दैट इंडियंस के लिए सही है होटल्स. ओके, सी द फर्स्ट थिंग अबाउट होटल इज व्हाट रूम्स बड़ी होनी चाहिए और इंडियन ब्रेकफास्ट मिलना चाहिए Very important. एवरी डे. सो उस पे जो मेजर फोकस है. और थर्ड थिंग कम्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थिंग. सो जो व्हीकल्स हम लोग यूज़ करते हैं वो प्रॉपर क्लीन है, नीट है, सो ताकि कोई अनकम्फर्ट नहीं हो गेस्ट के लिए, स्मेल्स गुड. सो वो भी देखना पड़ता है. सो ये जो चीज़ें है ऑन अ डेली बेसिस प्लेज अ मेजर रोल. सो बिकॉज अभी क्या है ना, वी कैन नॉट जस्ट ऐसा ऐसा नहीं है वी हैव डन द थिंग, डन द कॉन्ट्रैक्टिंग, होटल व्हीकल्स हम लोग ने कर दिया है सो दैट इट विल रन एन ऑटोमेशन. ऐसा नहीं है. वी डेली चेक ऑन अ डेली बेसिस दैट एवरीथिंग इज स्मूथ, यू नो, व्हेन इट कम्स टू व्हीकल. और रेस्टोरेंट्स का फीडबैक्स लेते हैं. सो इफ अ गेस्ट इज गोइंग, इफ दे गिव अप अ कंप्लेंट ऑन रेस्टोरेंट, we'll make sure that if it is a common complaint, we don't use that restaurant again. Absolutely. So that is how we, you know, try to, you know, maintain our service quality. If a customer complains on a hotels regularly complain kar raha hai, so what type of usually comes up, towels are not clean at times, Refresh नहीं है. हाँ, room service नहीं है. So those points are major when in terms to, you know, keep regular updates on the, you know, service quality. So that is also another thing. और उसके बाद क्या है ना, we will try and develop it. You know, आपका गेस्ट का फीडबैक लेते हैं हम लोग ऑन ग्राउंड. जो कोई भी गेस्ट है, we are open to feedbacks. So that is when we can, you know, learn and, you know, grow Learn more. from our mistakes. Yeah, yes, correct. Learn from our mistakes. So that is when we will ensure that, okay, we are okay to open to suggestions or feedbacks or whatever it is. So only then we'll get to know what type of service we are providing them. So without the feedback, we will never know are we going on a right path or not. Correct. That is there. Correct. So अगर मैं आपको if I just summarize it, once फीडबैक से जो हम सीख रहे हैं उसको हम इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं, हम चेक्स भी लगा रहे हैं कि पहले से प्रिवेंट कर रहे हैं कि ये चीज़ें ना हो. करेक्ट. एवरी पॉइंट ऑफ फेलियर जो हमें नजर आ रहा है कि दिस इज अ पॉसिबल पॉइंट ऑफ फेलियर, तो मैं उस पॉसिबल पॉइंट ऑफ फेलियर को अवॉइड करूंगा. Yes. करेक्ट. ताकि वो चीज़ें ही ना हो आगे से. Correct. करेक्ट. लर्न करेंगे, उसको आइटरेट करते जाएंगे कि थिंग्स गेट बेटर एंड बेटर ओवर टाइम. Yes. Okay. So in this case, my final question is like, what makes Global, your company, what makes it different than other companies who also handle Indian customers? Yes. See, DMCs, there are n numbers of DMCs in Singapore. आपको तो पता ही है. हर एक नया DMC आता है. So in between that race, to stand unique is a great challenge for us. Absolutely. So making us different from others, आप बोलोगे ना, so what sort of things which we do that makes us, you know, different from another DMC. A few things are there, you know, chat support. Customer को पहले चाहिए support. Correct. From foreign होल्डिंग चाहिए. yes, कुछ होल्डिंग चाहिए. हाँ. फ्रॉम विजिटिंग इंडिया टू सिंगापुर, फर्स्ट थिंग कनेक्ट्स करता है जो हम लोग का यूनिक एक हम लोग बना हुआ है प्री अराइवल कॉल. सो दैट इज वन थिंग. बिफोर इवन अराइविंग इनटू सिंगापुर, गेस्ट को हम लोग के तरीके से कॉल जाता है. वी डोंट यूज ग्लोबल नेम, वी विल जस्ट सिंपली टेल देम दैट वी आर योर लोकल सर्विस प्रोवाइडर. सोचो कल आपका गेस्ट आ रहा है सिंगापुर के, हम लोग का कॉल आज जाएगा, ensuring that someone has made sure that your arrival is being expected for tomorrow. Correct. So that day itself the connections builds. So हम लोग के 3 तरीके का सपोर्ट देते हैं हम लोग. वन इज चैट सपोर्ट और कॉल सपोर्ट, and other thing is on ground support.
सो कस्टमर्स को 24/7 टाइमिंग पे ऐसा नहीं है मैं जस्ट रैंडमली बोल रहा हूँ. यस आई मीन इट व्हेन आई से दैट 24/7 यू विल गेट द रिप्लाई 24/7 आपको. सो चैट्स पे एक्टिव है, कॉल्स पे आप कॉल कर सकते हैं, एनी टाइम कॉल कर सकते हो. ऐसा नहीं है हम लोग वी डोंट आंसर कॉल्स. यस इफ वी स्किप कॉल्स ऑल्सो वी डू कॉल बैक. सो दैट इज अनदर थिंग. ऑन ग्राउंड पे पर्सन है, अगर कुछ कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम है, ऐसा एक उनको कुछ फील है, ऑन ग्राउंड की ज़रूरत है, सो वी विल सेंड अ पर्सन देयर. नॉट फॉर एवरी सिंगल गेस्ट तो मुश्किल है, बट वील मेक श्योर अगर गेस्ट को कोई प्रॉब्लम है, कुछ डिस्कम्फर्ट है, वील सेंड अ पर्सन टू चेक व्हाट इज हैपनिंग है. और सेकेंड थिंग जो एंटायर रिजर्वेशन प्रोसेस होता है विच इन बिटवीन ट्रैवल एजेंट टू DMCs है. सो आर टीम इज प्रोडक्टिव है, सुपर नॉलेज है, सो उनको पता है व्हाट वी आर सेलिंग, उनको पता है. सो जो टर्न अराउंड टाइम होता है, तो फर्स्ट थिंग उधर से ही शुरू होता है. जो आप ईमेल भेज रहे हो, आपको जितना फास्ट हम लोग रिप्लाई करते हैं, जितना इन्फॉर्मेटिव हम लोग दे सकते हैं, वो वैल्यू ऐड करता है. और एंटायर प्रोसेस हम लोग को जो ऑपरेशंस टीम के बारे में बताया और रिजर्वेशन टीम के बारे में, फिनेंस पार्ट भी हो, सो हम लोग क्लियर है. जो हम लोग कमिट करते हैं वो डिलीवर करने में जितना पॉसिबल है उतना हम लोग स्टैंड करते हैं. सो मेजरली it all comes to on one end, which is on ground service. So whatever happens before travel doesn't matter. So the real problem, real challenge शुरू होते हैं when is your guest on ground. So हम लोग का full responsibility बनता है so that उनका ऐसा नहीं है हम लोग we just deliver the service. ऐसा नहीं है हम लोग भी दे दिया ऐसा नहीं है. हाँ ऐसा नहीं है. रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खुश होकर जाना चाहिए. Yes, so we will make sure your guests are happy with taking our service and making their entire trip memorable. उस पे हम लोग का मेजर फोकस रहता है, नथिंग एल्स. सेकेंड थिंग इज सेकेंडरी, उस पर कोई डाउट नहीं है. बट फॉर एज व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल, सो वी फोकस ऑन सर्विस. वी डोंट फोकस ऑन नंबर्स, वी फोकस ऑन क्वालिटी. उस पे ही चलता है, क्वालिटी और सर्विस पे ही ग्लोबल आज तक सस्टेन किया है. पूरा मेरे हिसाब से पूरा ट्रैवल इंडस्ट्री इस चीज़ के ऊपर चलती है कि हाँ सर्विस ऐसा होना चाहिए. सर्विस प्लान शुड रिटर्न टू अस. यस, फॉर व्हाट यू आर पेइंग इट्स एवरी पेनी वर्थ हम लोग रिटर्न देना पड़ता है. बिकॉज इंडियंस आर स्पेंडिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी इन स्पेंडिंग और रनिंग अराउंड. यस, इंडियन ट्रिप्स पे. सो ऐसा कभी उनको महसूस नहीं होना चाहिए वी आर वेस्टेड ऑन समथिंग visiting this place. ऐसा कभी we will never let the customer regret themselves visiting in Singapore. So that is one thing we follow on a daily basis. No customer should leave the country unhappy. Right. Yes. That's a great philosophy. Yes. ठीक. That's a great philosophy to end with. Before I let you go, I have one very important question about Mr. Nawaz. Yes. So 12 years आप ये चीज़ कर रहे हैं, इतने अपने स्पेंड किया है टाइम सिंगापुर में, इतने गेस्ट के साथ आपने बात किया है. Tell me one of your favorite memories about Singapore. Singapore is मेरे को सिंगापुर ऐसा चीज़ है more than a work. So life, Singapore has given me a life. So started career with multiple things, but अभी पिछले 10 साल से सिर्फ सिंगापुर ही बेच कर रहा हूँ. So I don't want to do anything else. ऐसा है आज. So my mindset is filled with I don't want to do any other destination और move on करके इधर नो सेकेंडरी ऑप्शन है. मेरे को यही करना है. आई एम हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग. सो ऐसा कुछ फील है. ऑल्सो व्हेन आई वाज इन सिंगापुर पे जो काम कर रहा था तभी भी मेरे को ऐसा लग रहा था व्हेन आई एंटर्ड सिंगापुर आफ्टर इधर इंडिया पे वर्क करके. सिंगापुर हैज़ गिवन मी एवरीथिंग आई वुड से. सो इट्स गिवन मी अ लाइफ. सो नया पाथ दिखाया है, विजन. सो टू डेवलप माई सेल्फ, सिंगापुर हैज़ बीन अ मेजर प्लेस इन माई एंटायर लाइफ बोलता हूँ. सो जो सेल्फ डेवलपमेंट हुआ, करियर में जो ग्रोथ जो कोई भी हुआ सिंगापुर से हुआ. सो वॉट आई एम नाउ इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ सिंगापुर आइड से. सो मेमोरीज सिंगापुर में कई ज़्यादा है. सो इनिशियली मैंने जब सिंगापुर पे एंटर किया था वो फर्स्ट टाइम बिफोर मेरे को भी न्यू था. सो एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, लर्निंग थिंग्स फ्रॉम एवरी सिंगल पॉसिबल वे. एवरी सिंगल पर्सन, ड्राइवर्स के पास, कैप्टन्स के पास सीख रहा था ये क्या कर सकते हैं. उन्हीं के पास से भी ज़्यादा पर्सपेक्टिव लाइक ग्राउंड लेवल में एक्चुअली क्या हो रहा है. यस. सो उन्हीं के पास से आप ज़्यादा सीख सकते हो. सो उनसे शुरू होके रेस्टोरेंट्स पे जो इंट्रैक्शन करते हैं हम लोग, उन्हीं से सीख के, होटेलियर से जो इंट्रैक्शंस होता है, तो हर एक जगह में लर्निंग है सिंगापुर में. एज अ विजिटर हो और वर्कर इन सिंगापुर हो, सो यू विल फाइंड प्लेसेस टू लर्न every single day, every single places. That is one thing there. So memory, one strong fun fact memory है जो सिंगापुर पे मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ. इतने साल हो गया जो मैंने उधर
सिंगापुर पे फर्स्टली जाके जो रेस्टोरेंट्स पे मैं खाता हूँ, सो आई ट्राई एक्सप्लोर एंड ट्राई टू ईट, Try to eat the food before keep promoting the restaurant. Yes. So that is where when I find a restaurant with fish curry. So I'm a non-vegetarian. So fish curry is something where you'll have to try in Singapore. So I have tried multiple things in Singapore, but one thing which I will never forget in Singapore is fish curry. Yeah. So that will always remain in my heart. I have a special place in that fish curry restaurant. It's still there in Little India. Teka Center के पास एक small restaurant है. So where you will find the authentic seafood there. क्या बात है। आपका फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट क्या है सिंगापुर का? सिंगापुर itself is the favorite part है, उस पर मैं अलग से क्या सुन के बता सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच मनोज भाई, थैंक यू फॉर डूइंग दिस। आपके आई होप कि आपके जितने जो पॉइंट्स बोले हमारे कस्टमर्स को सारे बेनिफिशियल रहा। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है सिंगापुर के बारे में, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, हम आपके हर क्वेश्चन का जवाब देंगे। और इफ़ यू वांट एनी एन आइटिनरी फॉर सिंगापुर फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रैवलर फॉर एनी पर्पज यू आर ट्रैवलिंग टू सिंगापुर, also please like and please comment on this video and we'll get back to you and I'll share you the best itinerary, and to ensure that we have the best services we have Mr. Nawaz always with us. Okay, so don't forget to subscribe and like this video and subscribe our channel. We'll meet again soon.